morning students. Today we are going to start the last chapter of your science. It is chapter number 18. It is about the pollution, that is the global threat. Okay, first of all what we have to understand, what do you mean by the pollution? Pollution क्या है बेटा? Pollution is the undesirable condition in the atmosphere. Undesirable changes in the composition of the natural environment is known as the pollution. I can say air that is surrounding us, air is the making the envelope around the earth. If the composition of the natural air, composition of the air is changed by some reason, then we can say the air gets polluted. हम लोग ये बोल सकते हैं कि एयर क्या है, polluted है. Some of the impurities can be found in the water bodies also. That's why the water would not be used for the longer. It gets polluted and it is for no use. It is of no use. ये कैसा है, potable water नहीं है, तो I can say it will be polluted. The water gets polluted. ठीक है. Whenever the large amount of chemicals or the indegradable substances found in the soil, so I can say it is the soil pollution or it is the earth pollution I can say. तो ये सारे जो pollution है, तो हमारे environment में sound का बहुत ज़्यादा produce होना, it is also a pollution. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, changes ला रही है natural environment में. That's why this is called the pollution. First of all, what we have to understand, our planet rightly refer to the mother earth. क्या है हमारा planet, क्या है, mother है हमारा earth. Provides us with a vast reserve of the natural resources. क्या करता है, natural resources provide करता है. These resources help us to not only survive but also fulfill our needs. ये जो resources हैं ये हमारी needs को fulfill करने में और हमको survive करने में help करते हैं. Earth is the only planet known to have air and water. Earth एक ऐसा planet है जिसके ऊपर air और water दोनों present है. ठीक है, which makes the life possible. जिससे क्या होता है, life possible होती है. The earth would be unable to sustain life. Earth would be unable to sustain life without air and water. We therefore need to take care of these precious sources. इसलिए हमको क्या करते हैं, इन precious sources का क्या करना है, सावधानी पूर्वक यूज करना है और इनकी देखभाल भी करनी है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन आई से, फर्स्ट पोल्यूशन वी कैन से इट इज एयर पोल्यूशन. इट इज एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन आई कैन से एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड द कंपोजिशन ऑफ दिस I can say 78% nitrogen is found in the air, 21% O2 is found in the air and 0.03% carbon dioxide. Except this, argon, krypton, xenon, these gases are also found in the atmosphere. Except this, water vapors are also found. कौन कौन सी वाटर वेपर्स भी यहां पर मिलती है. तो हमको क्या करता है, ये जो गैसेस है, whenever the composition of these gases may be changed, then I can say the air gets polluted. Air gets polluted. Air is the odorless gas. Air क्या है, odorless है. However, when you go near the chemistry lab, whenever we are going through the chemistry lab in your school, you often observe the strange smell. एक अजीब स्मेल सूंघी होगी आप लोगों ने या फिर ऑब्जर्व करी होगी. Sometimes while walking on the congested road, you start coughing because of the smoke of the vehicles. These are the indicators that the air around you is not fresh. हम लोग ये मान सकते हैं कि वहां पर एयर जो है वो क्या है, फ्रेश नहीं है. You might have heard people talking to going to a park to get the fresh and cool air. आप लोगों ने देखा होगा कि जो गार्डन है या पार्क है उनमें लोग जाते हैं फॉर गेटिंग द फ्रेश एयर. व्हाट मेक्स द एयर इन द पार्क फ्रेश? वहां पर क्या चीज ऐसी है जो एयर को क्या कर रही है, फ्रेश कर रही है? वहां पर क्या है, प्लांट्स वगैरह है. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ब्रेथ इन सम प्लेसेस. कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर सांस लेना बहुत मुश्किल होता है. व्हाट कुड बी द कॉज? क्या कारण है? प्लेसेस सच एज केमिकल लेबोरेटरीज, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज emit the harmful gases.
डस्ट, स्मॉग एंड फ्यूम्स, वहां पर बहुत सारे डस्ट वाली गैसेस बन रही है, फ्यूम्स बन रहे हैं. द प्रेजेंस ऑफ दीज सब्सटेंसेज इन द एयर मेक्स इट अनक्लीन. एयर के अंदर इन सब्सटेंस की जो प्रेजेंस है दैट मेक्स इट अनक्लीन एंड अनफिट फॉर ब्रीथिंग, अनफिट फॉर ब्रीदिंग. व्हेन द एयर गेट्स कंटामिनेटेड, एयर गेट्स कंटामिनेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज रिलीज इनटू ड्यू टू द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड कॉजेज. कुछ ऐसे कॉजेज जो ह्यूमन मेड हैं, कुछ नेचुरल कॉजेज हैं जिनसे, जैसे सोइल इरोजन हुआ या फिर वल्केनिक इरेक्शन हुआ, वल्केनिक इरेक्शन होने से तो सुनामी आ गई, उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन हो सकता है. दैट केस द सब्सटेंसेज व्हिच कॉजेज द एयर पोल्यूशन, द सब्सटेंसेज व्हिच कॉजेज द एयर पोल्यूशन, द सब्सटेंसेज व्हिच कॉजेज द एयर पोल्यूशन are known as the air pollutant, air pollutants, contaminants भी बोल सकते हैं इनको. air pollutants, air pollutants means that makes the air polluted. तो इसका मतलब क्या, जो भी impurities है, स्मोक भी हो सकता है, वाटर वेपर्स भी हो सकता है, और अदर गैसेस दैट कैन पोल्यूट द गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग पोल्यूटेड गैस मान सकते हैं एक तरह से. तो The air pollution is the problem that anyone should be concerned about. जो सबके सब जानते हैं इसको. As it affects everybody in the same way and the other. किसी को भी किसी अलग अलग वे में ये अफेक्ट करती है. Getting a breath of fresh air has become impossible today's life. आज के वर्ल्ड में, आज की लाइफ में जो फ्रेश एयर है उसको कंज्यूम करना या ब्रेथ करना पाना मुश्किल है. The quality of the air in cities is anything but not fresh. सब कुछ हो सकती है क्वालिटी, बट नॉट द फ्रेश. ऑल ऑफ विच आर विद इन ह्यूमन कंट्रोल. सब कुछ क्या है, ह्यूमन कंट्रोल में है. नेचुरल कॉजेज सच एज डस्ट स्टॉर्म इन द डेजर्ट एरियाज, वल्केनिक इरप्शंस एंड फॉरेस्ट फायर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन. ये क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन कॉजेज कर सकते हैं. द सोर्स ऑफ द पोल्यूशन मे बी इन वन प्लेस बट द इंपैक्ट मे बी एल्सवेयर. क्या बोला है कि सोर्स एक जगह हो सकता है उसका एयर पोल्यूशन का, बट द इफेक्ट विल बी शोन इनटू द डिफरेंट प्लेसेस आल्सो. ठीक है. द मोमेंट यू स्टेप आउट फ्रॉम द हाउस एंड आर ऑन द रोड, अगर आप घर से बाहर निकल के रोड पे आ रहे हैं, यू कैन एक्चुअली सी द एयर गेटिंग पोल्यूटेड. अ क्लाउड ऑफ द स्मोक फ्रॉम द एग्जॉस्टेड ऑफ अ बस, अ कार और अ स्कूटर. व्हीकल्स से क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है. स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द फैक्ट्री चिमनी, फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकल रहा है. और दैट जनरेटेड बाय थर्मल पावर प्लांट्स एंड द स्पीडिंग कार्स कॉजिंग डस्ट टू राइज फ्रॉम द रोड्स. बहुत तेजी से जो कारें चल रही होती है उनसे साथ में धूल उड़ रही होती है. मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट हैव रिजल्टेड इन द एयर गेटिंग मोर एंड मोर पॉल्यूटेड ओवर द ईयर्स. जैसे जैसे लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, एयर ज्यादा से ज्यादा क्या हो रही है, पॉल्यूटेड होती जा रही है. ग्रोइंग अर्बनाइजेशन has lead to an increase in the demand for more land. ज्यादातर लोग जो गांव से सिटीज की तरफ जा रही हैं, they had to stay over there. For that they need place or the land, और लैंड फ्री करने के लिए they are cutting the trees. deforestation हो रहा है वहां पे. Then the number of vehicles increases हो रहे हैं, increasing at an alarming rate which is causing the manifold increase in the pollutants. जिससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा pollutants create हो रहे हैं. Released by them, increase in the number of industries has also contributed significantly to air pollution. एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, किससे, इंडस्ट्री से फैक्ट्रियां निकल रही है, केमिकल्स निकल रहे हैं, उनसे धुआं निकल रहा है उससे. इन एडिशन टू दीज फॉरेस्ट फायर्स, एक्सीडेंटल फायर्स इन द ऑयल वेल्स, large scale burning of the agricultural waste and burning of the dry leaves also release a number of hazardous gases which pollutes the air. क्या बोला उसने, फॉरेस्ट के अंदर जो आग लगती है वो, नेचुरल फायर्स इन द ऑयल टैंक्स और द लार्ज स्केल बर्निंग ऑफ द एग्रीकल्चरल वेस्ट. एग्रीकल्चरल जो वेस्ट है उसको जलाने से, या फिर हम लोग बोलते हैं ड्राई लीव्स को जलाने से, जो हार्मफुल हैजार्डस गैसेस निकल रही हैं, दैट कैन ऑल्सो पोल्यूट द एयर. ठीक है. हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं. What are the pollutants? Air pollutants कौन कौन से हैं? First of all, it is showing the carbon monoxide. Carbon monoxide. The formula is carbon monoxide.
is the gas produced by the incomplete burning or incomplete burning of the fuels such as petrol, diesel and wood. जो तीनों जो है पेट्रोल, डीजल एंड वुड, अगर वो इनकम्प्लीटली जल रही है, कंप्लीटली खत्म नहीं हो रही है, तो द गैस विल बी प्रोड्यूस्ड इज कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज रिलीज्ड इन द एयर. इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स. इनसे सिंथेटिक प्रोडक्ट से जलने से ये प्रोड्यूस हो रही है. इट लोअर्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. हमारे ब्लड की क्या करती है, ये ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन हैविंग की कैपेसिटी, ऑक्सीजन को कैच करने की जो पॉसिबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको स्लो डाउन करता है ये. इट इज द पॉइजनस गैस. ये कैसी है, हार्मफुल गैस है बेटा. विच कैन स्लो आवर रिफ्लेक्शंस. ये हमारी जो सोचने समझने की ताकत है ना, वो कम कर देती है. एंड एक्सट्रीम कंडीशंस, इन एक्सट्रीम कंडीशन कैन इवन प्रूव टू बी फैटल. ये क्या हो सकती है, ये खतरनाक साबित, जानलेवा साबित हो सकती है. नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड. इस कंस्टिट्यूट्स 0.03% बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर. पूरा एयर का जो वॉल्यूम है उसका 0.03% ये है. इट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ये किससे किससे रिक्वायर्ड है, फोटोसिंथेसिस से के लिए रिक्वायर्ड है. द प्रोसेस बाय विच द प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड. प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं. It is mainly released into the air by the respiration and the combustion of the fuels. Complete combustion हुआ तो उससे क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड. However, due to the enhanced burning of the fuels and cutting of the trees, the concentration of carbon dioxide in the air is increased significantly. क्या हो रहा है, प्लांट्स को काटने से. Why? Whenever we are cutting the air, cutting the plant, sorry, प्लांट जब हम लोग काट रहे हैं तो प्लांट्स आर ओनली प्रोड्यूसर ऑफ द ऑक्सीजन एंड ओनली कंज्यूमर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या करते हैं, ये गेन करते हैं इन द प्रिपेयरिंग ऑफ फूड. अगर हम लोग उसको काट रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. इट एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट्स. इट एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट. इट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट which results in increase in the temperature of the earth. जिससे क्या हो रहा है, अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर को एक्सकेप करने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो रही है. इन द एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो टेम्परेचर है दैट विल बी इनहांस्ड और इंक्रीज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हायर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट पोल्यूटेंट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC. CO2 हो गया, CFC. CFC इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द गैसेस दैट रिलीज मेनली फ्रॉम द एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड एरोजोल स्प्रे. जो स्प्रे वगैरह हो ना, डिओड्रेंट वगैरह, उनसे. CFC रिलीज इनटू एयर लीड टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर इज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट कैन प्रोटेक्ट अस from the harmful sun rays, that is ultraviolet rays. It is protective layer that shields earth from the harmful ultraviolet rays of sun. यही बोला है मैंने. ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड is produced by the burning of the fossil fuels. What do you mean by the fossil fuels? Fossil fuels that are produced by the fossils या fossils. Fossil क्या होता है, the dead or decaying or dead remains of the animals or plants from the thousands of year. बहुत सालों पहले के जो रिमेनिंग अवशेष हैं, एक तरह से बोलते हैं ना, डेड अवशेष जिसको बोलते हैं, डेड ऑर्गन्स, बोन्स वगैरह मिल जाते हैं कभी खुदाई करने के अंदर, तो दीज आर द फोसिल. तो मिलियंस ऑफ ईयर अगो प्लांट्स विल बी डग इनटू द अर्थ. कहां गए थे, समा गए थे. तो वहां पर क्या था, हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर. Due to the higher pressure and higher temperature, it gets converted into the coal. It will be it was the converted into coal. कोयले में बदल गए थे. तो that's why coal is the fossil fuel. तो coal is the fossil fuel. और उनसे क्या बनना है, वहां पर क्या था, पेट्रोल. पेट्रोल भी आजकल क्या होता है, बहुत लाखों सालों में बनता है. पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, these are the fossil fuels. तो इनके फॉसिल फ्यूल से बर्निंग से ये बनता है. इट इज अ वेरी पॉइजनस गैस. ये पॉइजनस गैस है. दैट कॉजेज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. रेस्पिरेटरी मतलब सांस से जो डिजीज होते हैं, सांस के डिजीज, उनसे. इवन लीड टू द परमानेंट लंग डैमेज. इससे परमानेंटली लंग डैमेज हो सकते हैं. इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर
ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, आ रही बात समझ में, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, विच मेक्स द रेन वाटर एसिडिक, SO2 गैस जो है सल्फर डाइऑक्साइड दैट विल कंबाइंड विद द वाटर वेपर्स एंड इन द क्लाउड्स, ये क्लाउड्स में हो रहा है तो इट विल फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे क्या बनाते थे, ये एसिड्स बनाते हैं, एंड व्हेनेवर दीज एसिड्स कम्स टू द अर्थ इट इज नोन एज एसिडिक रेन। ओके, द लेड क्या होता है, लेड इज ऑल्सो द पोल्यूटेंट, is harmful metal present in the petrol, diesel, lead batteries, paints and dyes. lead का यूज होता है पेंट्स एंड डाइज में, पेट्रोल में, डीजल में। इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसका जो इम्यून सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम जो है उसको ये क्या करता है, डैमेज करता है। इट ऑल्सो कॉजेज डैमेज टू द हार्ट एंड किडनीज, किसको डैमेज करता है, हार्ट एंड किडनीज को। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स आर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द airs that like the water vapors consist of the solid particles of smoke and dust। क्या होता है स्मोक और डस्ट का, ये क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। दे आर एमिटेड बाय द व्हीकल एमिशन, व्हीकलर का मतलब होता है व्हीकल्स से जो एमिशन हो रहा है गैसेस का, उससे ये बनते हैं। वन मोर थिंग इज दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड आर द प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ द फ्यूल सच एज पेट्रोल, डीजल एंड कोल, ये भी पेट्रोल, डीजल और कोल के जलने से हो रहा है। दीज गैसेस कॉजेज द कफिंग्स, वीजिंग एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इससे भी क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। यू माइट हैव सीन अ फॉगी हैज ओवर द सिटीज, उस शहरों के ऊपर फॉगी हैज मतलब एक तरह से हैज देखी होगी आपने, धुआं देखा होगा, एक लेयर बनी हुई। इन द विंटर दिस इज कॉल्ड द स्मोक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्मोक बोलते हैं। Polluted air contains smoke and several other air pollutants. The oxides of nitrogen present in the smoke combine with the winter fog and other air pollutants to form the smoke. Other air pollutants के साथ में oxides of nitrogen की जो oxide होते हैं वो क्या करते हैं, combine करते हैं with the smoke और क्या बना देते हैं, smoke बनाते हैं। Smoke lead to the extremely low visibility। अब क्या होता है, कोहरा बन गया है, smoke क्या है, कोहरा, और स्मोक मेक्स द लो विजिबिलिटी, हमारे सामने अगर कोहरा है तो मुझे सामने वाली कोई चीज शो नहीं होगी, इट स्लोज डाउन द विजिबिलिटी, विजिबिलिटी को शो करेगा, ये विजिबिलिटी को कम करेगा। इट ऑल्सो कॉजेज द इरिटेशन टू द आईज, कफिंग एंड विजिंग एंड द सेवरल ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, खांसी हो सकती है, छींक हो सकती है। हैवी स्मोक ऑल्सो प्रिवेंट द सनरेज, हैवी स्मोक जो होती है, धुंध जो होती है वो क्या है, सनरेज को भी आने से रोकती है, फ्रॉम रीचिंग अस, हमारे तक आने में, विच में रिजल्ट्स इन द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, जिससे विटामिन डी की भी कमी हो जाती है, जिससे विटामिन डी की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ओके, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड इट इज इनफ फॉर टुडे। वी विल कम with the acid rain in the next period. It is enough for today. Thank you. Have a nice day.